امام زمانہ، امام غائب، امام منتظر، حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ آپ کا ظہور قرب قیامت کی کبریٰ نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے ہوں گے، جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور جن کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، لہٰذا ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک دنیا میں کیا حالات ہوں گے؟ آپ علیہ السلام کا ظہور کہاں ہوگا اور کس مقام پہ ہوگا؟ اور آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد دنیا کے حالات کس طرح بدلیں گے؟ آپ کی ظاہری حالت کیسی ہوگی؟ اور آپ کون کون سی جنگیں لڑیں گے؟ یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ویم ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں دنیا کے حالات بہت خراب ہو چکے ہوں گے۔ ہر طرف ظلم و ستم ہوگا، ناانصافیاں ہوں گی، یہاں تک کہ زمین بھی اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہوگی، جس کا مطلب زمین پر قدرتی آفات کی کثرت ہوگی، زلزلے اور طوفان اور موسمیاتی سختیاں اپنے عروج پہ ہوں گی۔ زمین سے غلہ اور اناج نکلنا تقریباً ختم ہو چکا ہوگا۔ ایسے میں ہر طرف بھوک اور غربت کا راج ہوگا، انسان کھانے کی ایک ایک چیز کو ترس رہے ہوں گے۔ قرب قیامت کے نزدیک جنگ و جدل اور خون خرابہ اپنی انتہا پہ ہوگا۔ دنیا میں ہر طرف کہیں نہ کہیں لوگوں کے درمیان کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر جنگیں چل رہی ہوں گی اور انسانوں کا قتل عام جاری ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ ایسے ہی اہل شام پر پابندی لگا دی جائے گی۔ تب پوچھا گیا، یہ کس کی طرف سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم کی جانب سے۔ پھر فرمایا، میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور اس کا شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے تک رہ جائے گا۔ یہاں مستدری الحاکم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو واپس لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ جمرہ القبا پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ ایسے میں حضرت امام مہدی جو کہ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے، وہ اس وقت دوڑ کے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آ جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تب امام مہدی کعبہ سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو، اس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے لوگوں، جب تم انہیں پالو
तो उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान पर भी मेहदी हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ज़मीन सरसब्ज़ हो जाएगी। आप अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुछ ऐसी जंगों का भी जिक्र मिलता है जिससे मुसलमान कुफ़ार से जंग करेंगे, मगर वो जंग हार जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब में एक बादशाह की मौत होगी तो एक आदमी मदीना से मक्का में मौजूद बैतुल्ला शरीफ में आएगा। फिर वहाँ मौजूद लोग उसे बाहर निकाल कर बैतुल्ला और हिजर अस्वद के दरमियान लाकर उसकी बैत करेंगे, और फिर अहले शाम के लोग भी आकर उसकी बैत करेंगे, जबकि वो इंसान इस बैत को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। फिर कुरैश से एक आदमी निकलेगा और वो एक लश्कर लेकर शाम से इमाम मेहंदी को कत्ल करने आएगा, मगर अल्लाह ताला उस लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान एक रेगिस्तान में धंसा देगा। जब लोग ये देखेंगे तो शाम से अल्लाह के वली और इराक के बेहतरीन लोग उनके पास आएंगे और उनकी बैत करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो उस वक्त नज़रों से छुप जाएगा और वो गरीब और मुसाफिरों में से होगा, और इस्लाम उस वक्त ऊँट की तरह होगा जो थकावट से अपनी गर्दन झुकाए हुए होता है। तो उस वक्त ज़मीन अपने ख़जाने उसके सामने उंडेल देगी और उस वक्त उसके सामने अपनी चाबियां डाल देगी। फिर वो तुम्हें दिखाएगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है। अगर आपने अब तक वैम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वैम टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है और वीडियो और रिसर्च पे की गई मेहनत वसूल हो जाती है। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडे लहराते हुए एक फ़ौज चलेगी, जो कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज के साथ जा मिलेगी। आज के दौर में खुरासान के इलाके में ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के मुल्कों का कुछ हिस्सा शामिल है। लेकिन जब खुरासान से फ़ौजें इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ जा मिलेंगी, तब मुसलमान पूरी दुनिया को फतह करेंगे। तब मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोमन दाबिक या अलमाक नाम की जगह पर जमा होंगे और मुसलमान भी जंग की तैयारी करेंगे और मदीना से रोमन से खिलाफ फ़ौज भेजेंगे। ये दोनों फ़ौजें आपस में जंग करेंगी। रोमन्स मुसलमानों से कहेंगे कि हमारे रास्ते से हट जाओ, ताकि वह दूसरी मुसलमान कौम से लड़ सकें, मगर मुसलमान इनकार कर देंगे और अपने भाई मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे और रोमन के खिलाफ जंग करेंगे, और वो ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसकी मिसाल किसी ने नहीं देखी होगी। यहाँ तक कि कोई परिंदा उसके किनारे से गुजरेगा तो उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, इस कदर कत्लेआम होगा। जब गिनती की जाएगी तो 100 आदमियों में से सिर्फ एक जिंदा मिलेगा। इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा डर के जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, और एक हिस्सा शहीद होगा जो अल्लाह ताला की नज़र में बेहतरीन शहीद होगा, और आखिरी हिस्सा जंग जीत जाएगा और वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। जंग ख़त्म होने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत में मसरूफ़ होंगे तो तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जो कि शैतान की होगी, जिसमें शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों में तुम्हारी जगह ले ली है, और इस तरह दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। इससे मुसलमानों में हंगामा पैदा हो जाएगा और वो बाहर निकलेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना होगा। दज्जाल के फितने से निमत आज़मा होने के बाद मुसलमान मुल्क के शाम जाएंगे। फिर वहाँ मुसलमान एक और जंग की तैयारी में होंगे। तब ही नमाज का वक्त हो चुका होगा और तब ही अल्लाह ताला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। वो 2 फरिश्तों के परों पर दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। फिर वो हज़रत इमाम मेहंदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। फिर यहाँ से मुसलमानों की क़यादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में मुसलमानों की इमामत आएगी और जिस मस्जिद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहंदी के साथ मौजूद होंगे, तब वहाँ मुसलमानों की बहुत कम तादाद होगी, जो कि कुफ़ार से लड़ते हुए उस मस्जिद तक महदूद हो जाएगी,
और उस मस्जिद को कुफ्फार ने चारों तरफ से घेर लिया होगा। मुसलमानों की इमामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में आने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मस्जिद के दरवाजे खोल दो। जब मस्जिद के दरवाजे खोले जाएंगे तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहंदी के साथ उस छोटे से लश्कर के साथ रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल के कत्ल होने के बाद बैतुल मुक़द्दस की फतह होगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। इस दज्जाल की एक आंख काणी होगी, इसके बाल घुंघरियाले होंगे, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। इसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी। इसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी। दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वो पहले ही इस दुनिया में मौजूद है। दरअसल इमाम मेहंदी के ज़हूर से पहले कुछ निशानियां पूरी हो चुकी होंगी, जिनमें सूरज का मगरिब से तुलू होना, मशरिक से एक अजीम आग का निकलना जिसकी पेशनगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में की हैं शामिल हैं। लिहाजा उन निशानियों के पूरा होने के बाद मुसलमान खुद इस इंतज़ार में होंगे कि इस उम्मत को निजात दिलाने वाला वो रहनुमा अनकरीब आने वाला है। अहदीस मुबारका में इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का हुलिया, शक्ल शबी तफसील से बयान हुआ है। इसी तनाजुर में हज़रत अबू सईद कुबरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहंदी मेरी नस्ल में से होंगे, जिनकी पेशानी रोशन और कुशादा होगी, जिनकी नाक ऊंची होगी। वो रूए ज़मीन को उसी तरह अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म सितम से भरी होगी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसर इक़्तिदार रहेंगे। एक रिवायत में आता है कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साख्त इसराइली होगी। हज़रत इमाम मेहंदी 7 बरस तक उम्मत की इमामत करने के बाद वफ़ात पा जाएंगे। इसके बाद उम्मत मुस्लिमा की इमामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, जो कि 40 साल तक इस ज़मीन पर हुकूमत करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इमामत के वो 40 साल दुनिया की तारीख़ के बेहतरीन साल होंगे, जब इस दुनिया में हर तरफ अमन व अमान और इंसाफ होगा और ज़मीन अपने तमाम ख़ज़ाने इन 40 सालों में ज़ाहिर कर देगी। ज़मीन से गल्ला और अनाज वाफिर मिक़दार में निकलेगा और इंतहाई कम मुद्दत में तैयार होगा। ये अमन व अमान और इंसाफ का वो दौर होगा जो इससे पहले इस दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और हिफाजत में रखे। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।